If you already completed around 60% syllabus, then this video can take you to an average of 99 percentile in JEE Mains. 99 percentile is not about studying everything. It's about selective masteries and ruthless revisions plus test your intelligence. Yes, if you cover just a 60% syllabus, then you can aim at your 99 plus percentiles in your JEE Mains exam, which is going to be held on April, right? Because आपका कैसे भी अटेम्प्ट अभी तक हुआ हो जनवरी का, नो मैटर्स, आप अप्रैल के लिए अगर स्ट्रेटेजी के साथ अगर फॉलो कर सकते हो, देन यू कैन स्कोर 100% योर मोर देन योर पोटेंशियल. अंडरस्टूड? सो व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू here. The truth is 99 percentile is not about studying everything. It's about selective masteries and the test intelligence. Whereas you should focus on the limited time. 60% syllabus you have completed. You should be ready for the discipline. And the target should be clear in your mind. Understood? Then let's see who this plan is for. Because who have covered the syllabus nearly for 60% and also who have the deep masteries, where you should learn the limited chapters, because learning the whole thing is not your kind of thing that you should focus, right? You should focus on the tricks and the tips, then solving the PYQs more than just repeating the theoreticals, okay? Then practicing the weekly mocks and accuracy, which is important. Don't just go away for the speed, just first focus on the accuracy, then get the speed, okay? Every topper reduces the syllabus first before increasing the effort. Then let us understand the subject wise what is the most priorities which can be given to which topics, which chapters, okay? Let's start from the physics first. In physics, you should be focused on the units and the errors. This is the one of the important topic and most of the students usually miss this topic, okay? It takes very less amount of time. But it will guarantee your marks. At least 2 questions can be asked in the exams. Understood? Then modern physics. This is one of the most important topic and most easiest also. This is the easiest, in which you should focus on just PYQs. Understood? The PYQs which are held in the last 5 to 10 years. From that you can learn the concepts, and also you should master which kind of the पैटर्न. यू शुड रिकॉग्नाइज द पैटर्न कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. अंडरस्टूड? तो वो आपको वहाँ पर फोकस करना होगा मॉडर्न फिजिक्स में. मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चंस लिमिटेड तरीके से बनते हैं, ज़्यादा उसमें वैरायटी होती नहीं है. जो लिमिटेड कंसेप्ट है उसी पर क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाता है. देन मूव करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये जेई का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चंस हर तरीके से बने जाते हैं. इसमें आपको कोर कंसेप्ट पे फोकस करना है. कोर कंसेप्ट जो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटीज़ की, जो मेन आपके प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर आपको फोकस करना है. उसको लेके आपको सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स पहले प्रैक्टिस करो, फिर जेई के PYQs करो, फिर आपको उस पर कमांड आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. सेम फॉर द मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म भी एक कोर टॉपिक है, लेकिन वेटेज हाई है. ऑप्टिक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 10 में पढ़ चुके होते हैं, एंड अगर आपने अभी तक पढ़ा हुआ है तो इतना कोई टफ होता नहीं है, ठीक है. देन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसके जो बेसिक फॉर्मूलेस है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए कैसे किया जाता है उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है. तो इसमें देखो, इसका जो फॉर्मूलेज होते हैं वो आप एक बार एक ऐसी शीट लो, उस पर आप नोट करके रख लो, ठीक है, ऑप्टिक्स के, ओके. देन उस फॉर्मूलेस को आप डेली रिवाइज करो 1 से 2 या 3 दिन तक, ठीक है. फिर उसके जो क्वेश्चंस है PYQs के, उस पर फिर जाओ आप,
फिर वो क्वेश्चन देखो कि आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर आपने कहाँ से पढ़ा होगा तो उसके एक बार आप एग्जाम्पल्स को भी रिव्यू कर सकते हो। फिर जो PYQs के क्वेश्चंस है उस पर आप जाओ। फिर अगर आपसे वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आएगी, फिर आपको क्या करना है, उसके आपको सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन से आपको चेक करना है कि आप जो यहाँ पर कंसेप्ट लिखे थे, क्या आप वो वहाँ पर अप्लाई करके आंसर तक पहुँच सकते थे कि नहीं, ठीक है। अगर आप पहुँच सकते थे तो इट इज़ वेल गुड कि आपको जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे पुश चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पुश मिल गया तो आप वहाँ पे आंसर तक इजीली पहुँच सकते हो। ओके, तो ऑप्टिक्स में आपको यही फंडा फॉलो करना है, आप इजीली ऑप्टिक्स को कवर कर दोगे। फिर मूव करते सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ये ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने खुद मिस किया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन आई रिग्रेट, ठीक है, देन आई रिग्रेट बिकॉज सेमीकंडक्टर जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे मिस कर देते हैं, या फिर कोई बोलता है कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट नो स्टूडेंट्स, आपको सेमीकंडक्टर्स पे फोकस करना है बिकॉज क्वेश्चंस यहाँ से टफ बनते नहीं है। एन पी सारी चीज़ें सिंपल होती है, गेट्स के ज़रिए करना होता है, कोई भी यहाँ पे टफ होता नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उनको रिकॉल करना होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉलेशन रखो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करते जाओ चीज़ों को। एंड सेम फॉर दिस ऑल्सो PYQs आर द बेस्ट थिंग, अंडरस्टूड। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री का कैसा सीन है जिसमें कि मैक्सिमम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये एक रटने वाला टॉपिक है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आप अगर इसको माइंडफुली, अगर आप इसको ट्रिक के ज़रिए या फिर कुछ मैक्सिमम तरीके से समझ के अगर आप इसे अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी कम चीज़ें यहाँ पे रटनी पड़ेंगी, स्पेशली इन ऑर्गेनिक, ठीक है। सी पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई हैव मेंशन दिस वन, ओके, वेट, या सी दिस इज द फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स, जो कि जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है मोल्ड कंसेप्ट। ये आपके बेसिक्स को कवर करता है। अगर आपने मोल्ड कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर कम्स फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री से हर साल क्वेश्चन जेई में देखे जाते हैं, ठीक है। अगर आप मॉक्स को उठा के देखोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पेपर्स को एनालिसिस करोगे तो आपको मोल्ड कंसेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वो मोल्ड कंसेप्ट किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको यूज़ होगी, ठीक है। तो उस पर आप अच्छी अपनी कमांड बना लीजिए। अब कमांड कैसे बनाओगे, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी, उसके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आप जो है, आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा मोल्ड कंसेप्ट को, तो उसके आप क्या उठा लो, क्लास नोट्स उठा लो। क्या उठा लो, क्लास नोट्स। अब क्लास नोट्स में जाओ एंड वहाँ पर अगर आप कोई बुक अगर फॉलो करते हो रेफरेंस, ठीक है, तो हर एक टॉपिक के जो होते हैं वो सॉल्व एग्जाम्पल को एक बार समझने की ट्राई करो, ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना अगर कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, आई विल लुक इनटू इट, एंड अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके टॉपिक्स के लिए स्पेशल वीडियोस यहाँ पर बनाऊँगा। तो आपको इसमें फोकस करना है मोल्ड कंसेप्ट पे फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद थर्मोडायनामिक्स इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो है जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, अभी मैं इंजीनियरिंग के लिए आ चुका हूँ यूनिटी में, तो मुझे पता चल रहा है कि आपको अगर आप केमिकल बैकग्राउंड से अगर जा रहे होगे किसी भी, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी प्रोफेसर आपके थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन सेट करते हैं ना, दे आर वेरी इंटेलिजेंट इनटू दैट, बिकॉज ये जो है ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स है। थर्मोडायनामिक्स के 2 सब्जेक्ट होते हैं, थर्मोडायनामिक्स 1, थर्मोडायनामिक्स 2 केमिकल इंजीनियरिंग में। तो वहाँ से इसकी डेप्थ पता चलती है कि किस डेप्थ तक ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो थोड़े से ट्रिकी एंड कंसेप्चुअल बनते हैं, ठीक है।
कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, जो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, लाइक एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी में जो भी आपके कंसेप्ट गिवन है एक बार उनके साथ गो थ्रू कीजिए, देन उसके बाद जाइए पीवाईक्यूज पे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे जाइए, फिर वहाँ से आप क्वेश्चंस को कनेक्ट करना समझ लीजिए। अगर हो सके तो कुछ जो है वो जेई एडवांस के, कुछ जो है वो जेई एडवांस के इसके क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। उससे क्या मिलेगा आपको, उससे आपको होगी कंसेप्ट की क्लैरिटी, ठीक है। ट्राई दिस, यू कैन ट्राई दिस, ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये थोड़ा सिंपल टॉपिक है, इसमें आपको जस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज देखने हैं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस कैसे वर्क करती है, ठीक है, इस पर आप फोकस दो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो इसके लिए, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जस्ट पीवाईक्यूज करो इसके लिए, दैट आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस। फिर बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स अगेन ये जो है आगे जाके आपको इंजीनियरिंग में भी पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है, सीआरई के नाम से, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, एंड ये थर्मोडायनेमिक्स के तरह ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप टेंशन मत लो, ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, ठीक है, यहाँ तक कि आपको जाना है। इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है कि ग्राफ्स, इसके ग्राफ्स को अच्छे से एनालिसिस करो कि किसके वर्सेस किसका ग्राफ है एंड ये कैसे प्लॉट हुआ है, ठीक है। इसके लिए कभी भी आप ना ग्राफ्स को रटो मत, इसकी एक बार इक्वेशन देखो, इक्वेशन को समझने की ट्राई करो, ठीक है। फिर ये इक्वेशन वर्क कैसे करती है उससे आप ग्राफ की तरफ जाओ, उससे आप ग्राफ की तरफ जाओ, ठीक है। इस यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से आपको इसमें क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी केमिकल काइनेटिक्स में, जिससे कि आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगा एंड यू कैन इजीली टेक दिस सब्जेक्ट इनटू योर मार्क्स बूस्टिंग वन, ओके। देन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीन ऐसे होता है, लाइक जीओसी तो हर कोई पढ़ लेता है, बट इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। जीओसी में होता ऐसे है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें बोल के जो एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ठीक है, एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज़ वो सबसे ज़्यादा जेई की फेवरेट है, वो हर बार एक्सेप्शनल जो होते हैं वो पूछते हैं उसमें, तो आपको सीधा जाके उस पर फोकस करना है। एंड जो मेन आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया या कोई इफेक्ट हो गया, तो आप उस पर एक बार उनके जो ऑर्डर्स है आप उसको फॉलो कीजिए। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको, कोई आपके पास अगर इसकी रेफरेंस बुक होगी, ठीक है, तो रेफरेंस बुक में से आप उसके एग्जांपल्स कर लो, आपको वहाँ से इसकी क्लैरिटी पूरी तरीके से मिल जाएगी जीओसी की। फिर बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स में स्पेशली होता है ऐसे कि सिंपल रिएक्शंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ठीक है, इन सारे के रिएक्शंस होते हैं, क्लोरीनेशन के टाइप के रिएक्शन होते हैं, ये सारे रिएक्शन सिंपल काइंड ऑफ है, इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। स्पेशली एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस गिवन है, एनसीईआरटी रिएक्शंस, ठीक है, एनसीईआरटी में जो कोई भी रिएक्शंस आपको गिवन है वो सारे एक बार आप ऐसे बुक लो, ठीक है, एक पेज लो, पेज पे सारे के सारे ऐसे नोट करते चलो, ठीक है, और उसको 2 या 3 बार पढ़ो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में वही रिएक्शन उठा के पूछ लिया जाता है, एंड उसके साइड में जो कुछ भी ऐसा लिखा होता है ना, वो भी आप 2 या 3 बार पढ़ लो, ठीक है। कभी कभी वो आपको स्टेटमेंट्स के इसमें पूछ लेना, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। यहाँ पे आपको फुल तरीके से मैकेनिज्म पे बेस्ड है, ठीक है। अगर बेसिक पे अगर आप जाना चाहोगे तो बेसिक के लिए इतना टेंशन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर इसमें एफर्ट अगर आप डाल सकते हो ना, अगर आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हो ना, तो आप इसमें इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ठीक है। ज़्यादा मैकेनिज्म्स नहीं है, अल्कोहल के लिए 1 या 2 मिल जाएंगे आपको जो इम्पोर्टेंट है, सेम वो फिनॉल पे अप्लाई हो जाएंगे। ईथर के लिए आपको मिलेंगे 2-3, ठीक है। इनके लिए अगर आप मैकेनिज्म्स एक बार समझ गए कि कैसे कैसे चीज़ें होती है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, ठीक है, C+, C-, ठीक है, तो आपके लिए ये इजी होगा टाइम पर आपको इसको इसके सॉल्यूशन को बनाना।
बिकॉज अगर आप रटने के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट इज़ आई एम सेइंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। सेम आप अगर अमाइंस के लिए अगर आप जा रहे हो तो अमाइंस के लिए आपको फिर से आई विल रिकमेंड कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म्स के ज़रिए जाओ, आप इसको रटो मत। रटना यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि बिल्कुल मुझे सच्ची में अच्छा स्कोर करना है ना, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे मैकेनिज्म की तरफ जाओ। आई नो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैकेनिज्म्स थोड़ा सा ऐसा हेक्टिक लगता है, मुझे भी इनिशियली लगता था, लेकिन नहीं, मैकेनिज्म के तरीके से जाओ, बहुत ईजी चीज़ें बन जाएगी। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको स्टार बना के दे दूंगा मैं, ऐसे बड़े बड़े 2 3, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। सेम फॉर द केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे जो जो कंसेप्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उन पर फोकस दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी तक सारे तरीके से एक्सेप्शन जो हो गए वो पूछे गए, एंड इसकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। बाकी इनऑर्गेनिक की पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन इनकी पढ़ो, ठीक है। फिर सिलेक्टेड जो टॉपिक्स है पी ब्लॉक के, उस पर फोकस करो। डी एंड एफ ब्लॉक का ज़्यादा तो होता नहीं है वेटेज, बट कभी कभी आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पी ब्लॉक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। रही बात पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में आपको जो एक्सेप्शंस होते हैं या फिर ऑर्डर्स होती है वो जस्ट आपको यहाँ पे रिमेंबर करनी है, ठीक है। ऑर्डर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जा सकता है। तो ये हो गया आपकी केमिस्ट्री के बारे में। अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में अगर कुछ और स्पेसिफिकली चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके लिए कंटेंट डिज़ाइन नहीं कर पाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, मैथमेटिक्स। सी, मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस। ये एक सिलेक्टिव टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जिसमें कि क्वेश्चन को टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर पेपर को उनको अगर टाइम कंज्यूमिंग अगर बनाना होगा तो मैट्रिसेस का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बना देंगे कि आपको वहाँ पे टाइम लगे, बट आपको वही यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस अच्छी रखोगे तो कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप उसको सॉल्व कर जाओगे। वो इतने ही जल्दी समय में सॉल्व होता है जितना वो वर्स्ट दिखता है, ठीक है। यही मैं आपको इसके लिए बोलना चाहूँगा। बाकी आपको कंसेप्ट को लेके जस्ट प्रैक्टिस करना है उसे, ठीक है। दिस द सेम थिंग कैलकुलस, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। कैलकुलस के लिए मेरी एक्चुअली सीरीज यहाँ पर चल रही है MST CET प्लस JEE मेंस के लिए। आप उस पर फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप स्पेसिफिकली अगर PYQs के लिए अगर चाहते हो तो कमेंट मी, आई विल स्टार्ट द PYQs फॉर द कैलकुलस ऑल्सो। कैलकुलस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बेसिक्स ऑफ फंक्शंस आने चाहिए। फिर आपको जो ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, ग्राफ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ग्राफ्स आगे आपके अगर अच्छे तो आप इंटीग्रेशन और AOD, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें आप इजीली वहाँ पे कवर अप कर जाओगे। सिमिलरली आप डिफरेंशिएबिलिटी में भी अच्छे से कर पाओगे, सिमिलरली आप कंटिन्यूटी में भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये ग्राफ्स का जो टॉपिक है ये आपको वहाँ हर जगह यहाँ पे हेल्प करेगा। तो कैलकुलस ये बनता है बेसिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप कैलकुलस में कमांड कभी भी ले सकते हो, ठीक है। चाहे आपका कमांड नहीं हो थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी में, या फिर आप बोलो डिफरेंट इंटीग्रल्स में, इंडिफरेंट इंटीग्रल्स में, तो आपका वहाँ पे कमांड इजीली बन सकता है अगर आपके बेसिक्स एक बार के अगर स्ट्रॉन्ग्स हैं, ठीक है। तो आप बेसिक्स पे वहाँ पे पहले वर्क करो, फिर आप सीधा जाके उसके PYQs सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आपके PYQs 100% बनेंगे। नहीं बनेंगे तो आपको सॉल्यूशन से पता चलेगा कि ये कोई किस बेसिक कंसेप्ट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो आप फिर से उस पर जाकर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो आप कैलकुलस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके क्वेश्चंस पे जाओ। प्रोबेबिलिटी ये इतना और टफ नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के लिए सिंपल है कि आपको परमुटेशन PNC अच्छे से आना चाहिए, ठीक है।
पीएनसी अच्छे से आना चाहिए, जो मेन मेथड्स होती है वो अच्छे से कर लो, ठीक है, बेस थ्योरम अच्छे से कर लो। एंड इसमें वन मोर थिंग, कभी कभी इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस इतने सिंपल होते हैं, सेमली बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं, ये इतने सिंपल होते हैं, पॉइसन रेशो बोल लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से उससे आपके मार्क्स 100% बूस्ट हो सकती है, इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, ठीक है। टफ एक बनेगा प्रोबेबिलिटी से जिसमें आपको थिंकिंग लगेगी पीएनसी की, और एक बनेगा इन सारे टॉपिक में से, ठीक है। तो बिल्कुल भी वरी मत करो, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, ठीक है। पीएनसी पे आपको पीवाईक्यू के जरिए आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। एंड इस टॉपिक को आप नोट से पढ़ो प्लस आप पीवाईक्यूज का हेल्प लो, अंडरस्टूड। फिर आ जाते हैं वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छा चाहिए, ठीक है, एंड फॉर्मूलेस ऑन टिप चाहिए। एंड प्रैक्टिस के लिए मैं जस्ट बोलूँगा आप पीवाईक्यूज की तरफ जाओ, ठीक है, नथिंग अदर देन दैट, आपका वेक्टर एंड 3D हो जाएगा। रही बात स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स में हर साल क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे मिस कर जाते हैं, इसको मिस कर जाते हैं, बस हमें इसे मिस नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चंस ये हमारे बिल्कुल मिलने ही वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो हमें इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो गाइज यहाँ पर हम एंड करते कि हमारा जो है मैथमेटिक्स का स्ट्रैटेजी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो हमने यहाँ पे देखिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कैसे चीज़ें वर्क कर रही है, कैसे हमें इनको फॉलो करना है, ये स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो मैं नेक्स्ट इसके सेशन में आपको टाइम मैनेजमेंट, ओके, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। एंड उसमें आप कैसे टाइम मैनेज करके इन सारी चीज़ों को अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, इसके बारे में आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए जो यहाँ पे मैंने सिलेबस दिया है उसको आप एक बार रिव्यू करें अपने एंड से, फिर आपको उसमें और क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने एंड से कुछ टॉपिक्स उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूर प्रेफरेंसेस आल्सो, बट व्हाट आई सी कि ये टॉपिक्स मैंडेटरी है एंड आप इन टॉपिक्स पर कंप्लीटली रिलाई हो सकते हैं। अगर आपने इतना भी सिलेबस अगर आप कर लिया होगा आपने, तो आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर आप अपना तैयार कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, डेली रिवीजन इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉक टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस। आई ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एनालिसिस करते ही नहीं है, मॉक टेस्ट ही बहुत कम लोग देते हैं यार, ठीक है। अगर आपने डेली, मैं बोलूँगा डेली मॉक टेस्ट, कोई आपको ये बोलेगा नहीं कि आप डेली मॉक टेस्ट दो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप डेली मॉक टेस्ट दो। अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट की भी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो क्लब करके, इट इज़ वेल एंड गुड। डेली मॉक टेस्ट दो, उसको डेली एनालिसिस करो, क्या गलती हो रही है। एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपकी गलती मिनिमाइज करना स्टार्ट कर देगी, ये ग्राफ जो है आपका गलतियों का, ये आपका ऐसा होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये नीचे आएगा आपकी मिस्टेक्स अपने आप कम हो जाएगी, मिस्टेक्स नीचे कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये होगा आपके मॉक टेस्ट से ही, और किसी से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यस, इसी पॉइंट पे आप इस स्ट्रैटेजी को एंड करते हैं कि आपके अगर 60% भी सिलेबस कंप्लीट है तो आप 99% के लिए यहाँ पर एम कर सकते हो। जस्ट आपको डेली रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मिलेंगे विद द टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उस पर हम वर्क करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।